لا الہ الا اللہ، سبحان تیری قدرت، تیری حمد و ثنا پڑھ رہا ہوں، تیری حمد و ثنا پڑھ رہا ہوں۔ خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا، خالق ہے تو خدا۔ ان دونوں شہروں کے اندر وہی آتا ہے جسے اللہ اور اللہ کا محبوب بلاتا ہے۔ اور عیسمان، آپ اس وقت اس مکہ شہر کے اندر مہمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جب آپ مدینہ پاک جائیں گے تو آپ مہمان ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور عیسمان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آنے والے کا سب سے پہلا قدم میری گھر کی حدود کے اندر پڑتا ہے تو میں آنے والے کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہوں، اور آنے والے کی جب سب سے پہلی نظر میرے گھر کی حدود کے اندر پڑتی ہے تو آنے والے کی جو دلی تمنا دعا ہوتی ہے میں اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے قبول فرما لیتا ہوں۔ عیسمان، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں مسلمانوں میں سے چن چن کر آپ کو اپنے گھر بلایا۔ آج جو ہماری مکہ مکرمہ کی جو سب سے پہلی زیارت، اس کا نام ہے غار ثور۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ شہر کے اندر اسلام کی دعوت دی، تبلیغ دی، تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ جب بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ روانہ ہو جائیں۔ تو اسی سفر کے ساتھ جب حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شہر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اسی سفر کے دوران جب روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم مکہ سے مدینہ روانہ ہو جائیں، اسی سفر کے ساتھ آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے والد کو پتہ چلا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، تمہیں پتہ ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں، اور آپ کے گھر میں بوڑھا ماں باپ اور جوان بیٹی ہے تو آپ نہ جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ اے ابا جان، مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر میں بوڑھا ماں باپ اور جوان بیٹی ہے، لیکن میں اپنا بوڑھا ماں باپ چھوڑ سکتا ہوں، جوان بیٹی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی سفر کے ساتھ جب مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تو سب سے پہلے دن 3 دن 3 راتیں اسی غار کے اوپر قیام فرمایا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، اور عیسمان اس کی ٹوٹل اونچائی ہے 5500 فٹ۔ جوان آدمی کو آنے جانے کے لیے 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر لے کر گیا کرتے تھے۔ جب اس پہاڑ کے اندر پہنچے غار کے اندر تو اس غار کے اندر کافی کیڑا کڑکڑ موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک چادر تھی، اسی چادر سے کیڑا کڑکڑ صاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلانے کی اجازت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اندر پہنچے تو عیسمان اس غار کے اندر کافی سوراخ وغیرہ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہی ایک چادر تھی جس سے حضرت ابو بکر صدیق نے کوڑا کرکٹ صاف کیا اور اسی چادر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تمام سوراخوں کو بند کر دیا، اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا جو کافی عرصہ اس انتظار میں تھا کہ اس غار کے اندر ایک بہت عظیم ہستی آنے والی ہے، اور وہ سانپ ایک دن میں 17 مرتبہ اپنی بل سے باہر نکلتا تھا۔ جب اس دن اپنی بل سے باہر نکلا تو دیکھا آگے راستہ بند تھا، آگے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی مبارک تھی۔ جب سانپ نے 3 مرتبہ ایڑی مبارک پر ڈسا تو زیادہ درد کی وجہ سے جب آنکھوں میں آنسو آئے تو آنسو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور مبارک پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، تم تو ابھی سے رو رہے ہو، ابھی ہمارا کافی سفر باقی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، سفر کی وجہ سے نہیں، کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے، درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی جگہ میری طرف کریں۔
जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पाँव वाली एड़ी आप वसल्लम की तरफ की तो आप वसल्लम ने लवाबे तैन लगाया और लगाते ही अल्लाह ताला की तरफ से शिफा याब हो गया। और इसी गार के अंदर जब 3 दिन 3 रातें क़याम फरमाया आइसमान, इसी गार के अंदर जब काफिरों को पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और आप वसल्लम इसी गार के अंदर मौजूद हैं, तो काफिर जब हमला के लिए पहुंचे तो इस गार के 2 रास्ते हैं, 2 तरफ से रास्ते हैं। इंशाल्लाह नीचे जब उतरेंगे ज़ियारत तक करवाएंगे, आपको दिखाऊंगे कि 2 रास्ते हैं। दोनों की तरफ जब काफिर हमला के लिए पहुंचे तो अल्लाह ताला की तरफ से एक रास्ते की तरफ मकड़ी ने जाला बूंद दिया और दूसरी तरफ कबूतरी ने अंडे दे दिए। जब काफिर वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा कि यह तो बड़ी पुरानी गार है, एक तरफ मकड़ी का जाला है, दूसरी तरफ कबूतरी के अंडे हैं। या अगर यहाँ से कोई गुजरा होता या तो मकड़ी का जाला टूट जाता या कबूतरी के अंडे टूट जाते। लिहाजा वो काफिर वहां पर पहुंचते ही वापस लौट कर आ गए। और उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से मदीना रवाना हुए। और आइसमान ये गारे सौर पहाड़ आज से 1450 साल पहले भी इसी शक्ल में था और आज भी अपनी उसी शक्ल में है। और ये बड़ा बरकतों वाला पहाड़ है जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दिन 3 रातें ज़ियारत की। इंशाल्लाह ये थोड़ी देर बाद हमारे पहली ज़ियारत गारे सौर पहाड़ की आ जाएगी। तमाम हाजी एक साथ इकट्ठे नीचे आएंगे ग्रुप की शक्ल में, ज़ियारत करके इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे। एक साथ ही रहना है आइसमान और एक साथ ही वापस। हमदो सना पढ़ रहा हूँ, तेरी हमदो सना पढ़ रहा हूँ। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बनाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बनाया। खालिक है तू खुदाया, बुलबुल को बेकली दी, कलियों को खामोशी दी, महके हुए गुलों को खामोश दिलकशी दी। आबे रवा बनाया, मौजों को खुद सरी दी, माहे तमाम देकर ठंडी सी रोशनी दी। सूरज को दी तमाज़त, बख्शा शजर को साया, एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बनाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बनाया। खालिक है तू खुदाया, सजदे करे ज़मीं पर जब पर्वतों के साए, बेनूर हो के सूरज सहरा में डूब जाए, फूलों को आके शबनम जिस दम वज़ू कराए, सारा निज़ाम कुदरत वहदत की लय सुनाए। सानी है कौन तेरा, यकता है तू खुदाया, एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बनाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक। से मदीना हिजरत की तो सबसे पहले 3 दिन 3 रातें इसी पहाड़ के ऊपर क़याम फरमाया था। आइसमान इसकी टोटल ऊंचाई है 5500 फुट,
जवान आदमी को आने जाने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं। वो लोग आते जाते आपको नज़र आ रहे होंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने कंधों के ऊपर उठाकर इस पहाड़ के ऊपर लेकर गया करते थे। और इसी 2 बड़े पत्थरों के साथ है गारे सौर, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहुँचे तो इस गार के अंदर काफ़ी कीड़ा कुड़कट मौजूद था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास एक चादर थी, उसी चादर से कीड़ा कुड़कट साफ किया और आप वसल्लम को अंदर बुलाने की इजाज़त दी। और आइसवान इसी गार के अंदर काफ़ी सुराख वगैरह थे। रवायत के अंदर आता है कि उसी सुराख के अंदर एक सांप था जो काफ़ी शोर से इस इंतज़ार में था कि इस गार के अंदर एक बहुत अजीम हस्ती आने वाली है। वो एक दिन में 17 मरतबा अपनी बिल से बाहर निकलता था। जब उस दिन अपनी बिल से बाहर निकला तो आगे देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी मुबारक थी। 3 मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी मुबारक पर डसा। जब ज़्यादा दर्द की वजह से आंखों में आंसू आए तो आप सल्लम ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक तुम तो अभी से रो रहे हो, अभी हमारा काफ़ी सफ़र बाकी है। फरमाया या रसूल अल्लाह, सफ़र की वजह से नहीं, किसी जहरीली चीज़ ने काटा है, दर्द की वजह से आंखों में आंसू आए। तो आप सल्लम ने कहा कि वही जगह मेरी तरफ करे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पाँव वाली एड़ी आप सल्लम की तरफ की तो आप सल्लम ने लवाब दैन लगाया और लगाते ही अल्लाह ताला की तरफ से शफा याब हो गए। और इसी पहाड़ के 3 दिन 3 रातें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। ये बड़ा बरकतों वाला पहाड़ है और आइसबान आज से 1450 साल पहले भी ये अपनी इसी शक्ल में था और आज भी अपनी उसी शक्ल में है। इसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दिन 3 रातें ज़ियारत की और उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक यहाँ से मदीना के लिए रवाना हुए। तमाम हाजी तस्वीर वगैरह ले लें, दुआ मांग लें, जो किसी की नेक तमन्ना दुआएं अपनी अपनी दुआ मांगे, फिर इंशाल्लाह गाड़ी की तरफ रवाना। से तूने सारा जहां बनाया, खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बनाया, खालिक है तू खुदाया। काशाने चमन में शादाब रंग तेरे, सब गोसफंद तेरे, आहू पलंग तेरे, शाहो वजीर तेरे, मस्तो मलंग तेरे, ऐ कुन फकान वाले सब रंग ढंग तेरे, मालिक है तू खुदाया, खालिक है तू खुदाया, एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बनाया, खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बना। गारिस और पहाड़, यहाँ से पूरा पहाड़ आपको नजर आएगा। और आइसबान हमने गारिस और पहाड़ की ज़ियारत की। अल्लाह ताला हमारी ज़ियारत को कबूल और मंजूर फरमाए। और आइसबान इसके ऊपर कुछ दोस्त जाने के लिए पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर जाने के लिए बेहतरीन हल है फजर की नमाज के बाद। आप अपने होटल से टैक्सी पकड़ लें, एक आदमी का भी 10-15 रियाल लेगी, 2-3 आदमियों का भी 10-15 रियाल ले। फजर की नमाज आप हरम में पढ़े या होटल में तो फौरन निकल जाएं। अभी तक चढ़ जाएंगे, उसके बाद उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है। अभी जो हाजी जा रहे हैं वो फजर टाइम पे चढ़े हुए हैं। तो सबसे बेहतरीन हाल है फजर की नमाज के बाद आप जा सकते हैं। और आइसबान अभी हमारी गाड़ी मैदान अरफात की तरफ रवाना है, जिस मैदान के अंदर आखिरत का मैदान, अशर का मैदान लगेगा। इस मैदान अरफात के बारे में यहाँ के मुकीमी बताते हैं कि इस मैदान अरफात के अंदर जब 10 लाख लोग हज पे आए तो यह मैदान फुल था, और जब 40 लाख लोग भी आए तो यह मैदान उसी तरह ही फुल था। और अल्लाह ताला की तरफ से कि ये मैदान के अंदर एक वक्त के अंदर पूरी दुनिया भी आ जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से पूरी हो जाएगी। यही मैदान अरफात अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ जाता है और यही फिर काम हो जाता है। ये आगे मैदान अरफात, मिना, मुजदलिफा, ये सारी आज की ज़ियारतें। तो ऐसा फायदा नहीं है अगर यहाँ पर आप बातें करने तो थोड़ा आए, ज़ियारतों पे अल्लाह ने मौका दिया वो करें जो अल्लाह ने किया। मैदान अरफात के अंदर
बता रहा था आपको, जैसे हरम शरीफ के अंदर आप उम्रे के लिए अपने मुल्क से आते हैं, मदीना से या तैफ से, जहाँ से भी आते हैं, कभी किसी ने आपको ये नहीं बोला कि आपका उम्रा 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा। जाओ भी जाता है, जिस वक्त भी जाता है उसका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला शाद फरमाते हैं, एक मैदान अरफात और दूसरा हरम शरीफ। एक वक्त के अंदर पूरी दुनिया आ जाए तो हरम शरीफ के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि पूरी हो जाएगी। यही हरम शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ जाता है और यही फिर काम हो जाता है। देखिए ये हज के दौरान 35-40 लाख लोग होते हैं, वो भी इसी हरम शरीफ के अंदर ही तवाफ ज़ियारत करते हैं। तो कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी का तवाफ नहीं हुआ, किसी का उम्रा मुकम्मल नहीं हुआ। जो भी हज उम्रे पे आता है उसका उम्रा हज तवाफ मुकम्मल हो जाता है। यही अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। भी इंशाल्लाह हमारी गाड़ी मैदान अरफात के अंदर है। मैदान अरफात, मीना, मुज़दलिफ़, ये हज की ज़ियारतें हैं तीनों जगह। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। इसके लिए इसलिए बोलते हैं कि हज से पहले उम्रा लाज़मी है। उम्रा इस वजह से लाज़मी है कि हाजी इधर आए, जो भी हज की शराइत है वो उनको पता चले। तो तवज्जो से सुनिए, इंशाल्लाह तमाम हाजियों को इसी साल हज जैसी सादत नसीब फरमाए। इस मैदान अरफात के अंदर हमारी सबसे पहले ज़ियारत है मस्जिद नबरा, जिस मस्जिद के अंदर हज का खुतबा होता है 9 ज़िलहज को। ये सारा साल मस्जिद बंद रहती, साल के बाद सिर्फ एक दिन के लिए खुलती 9 ज़िलहज को। इस मस्जिद के 66 दरवाजे, 6 मीनार, 3 गुंबद और एक वक्त के अंदर 2.5 से 3 लाख लोग मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद साल के बाद एक दिन के लिए खुलती है और फिर सारा साल ये बंद रहती है। 9 को इस मस्जिद के अंदर हाजी खुतबा सुनते हैं या खैमों के अंदर क़याम करते हैं। और जोर और असर की नमाज आपने मैदान अरफात के अंदर ही अदा करनी है, मस्जिद नमरा के अंदर या खैमों के, जहाँ पर आपका मस्जिद नमरा पहुंचना लाजमी नहीं होता, खैमों के अंदर क़याम करना लाजमी होता है। जोर और असर की नमाज आपने इसी मस्जिद नमरा मैदान अरफात के अंदर अदा करनी है। और फिर मगरिब से पहले थोड़ा रवाना हाजी होते हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। और मुज़दलिफ़ा के अंदर हाजियों को पहुंचते रात के 10 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं और कई हाजी ऐसे होते हैं जो रात को 2 भी बज जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि मगरिब और इशा की नमाज आपने मुज़दलिफ़ा के अंदर ही अदा करनी, बेशक रात के 2 भी बज जाएं। दोनों नमाजें एक जमात के साथ इकट्ठी अदा करनी है। ऐसवानी आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ ये जीजिया का इलाका है। जीजिया के होटल है, ये साल के बाद सिर्फ खुलते हैं हज के दौरान। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 3 मुल्कों के लोग हाजी इसी हज वाले इधर ठहरते हैं। तो जो हाजी हज पे आए उनको तो पता होगा, जो नहीं आए और किसी ने बताया होगा कि हम जीजिया के अंदर ठहरे। ये जीजिया सिर्फ हज के दौरान ही होटल खुलते हैं। ये मैदान अरफात के बारे में आपको बता रहा था कि मुज़दलिफ़ा के अंदर जब हाजी पहुंचते हैं, मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं, बेशक 10 बजे पहुंचे या 12 बजे पहुंचे, तो फिर उसी मुज़दलिफ़ा के अंदर एक रात खुले आसमान तले गुजारते हैं। कोई किसी के लिए खैमा नहीं है, बस्ती नहीं है, कोई जितना भी दुनिया का अमीर आदमी है जो उस मुज़दलिफ़ा के अंदर एक रात खुले आसमान तले क़याम नहीं करेगा, उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। एक रात खुले आसमान तक क़याम करना और फिर उसी रात क़याम करने के बाद अगले दिन 10 वाले दिन फजर की नमाज भी आपने मुज़दलिफ़ा के अंदर अदा करनी। अदा करने के बाद इसी मुज़दलिफ़ा के मैदान से ही हाजी कंकरियां उठाते हैं जो शैतान को रमी करते हैं। सिवाय मुज़दलिफ़ा के आप कहीं से कंकरियां नहीं उठा सकते। इंशाल्लाह आप मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे, आपको दिखाएंगे कंकरियां पूरे मुज़दलिफ़ा के अंदर बिखरी हुई आपको नजर आएंगी। वहां से हाजी, कई हाजी रात को उठा लेते, कई फजर की नमाज के बाद। फिर नमाज फजर अदा करने के बाद हाजी रवाना होते हैं मीना की तरफ शैतान को कंकरियां मारने के लिए। सबसे पहले दिन 10 वाले दिन जब रवाना होते हैं तो छोटे शैतान को नहीं मारते, दरमियाने शैतान को भी नहीं मारते, सबसे बड़े शैतान को सिर्फ 7 कंकरियां 10 वाले दिन। ये तवज्जो से सुन ले। फिर अगले दिन 11 वाले दिन 7 छोटे शैतान को, 7 दरमियाने शैतान को, 7 सबसे बड़े शैतान को। फिर उससे अगले दिन 12 वाले दिन 7 तीनों शैतान को कंकरियां मार के रमी मुकम्मल होती है। फिर उसके बाद हाजी कुर्बानी करता है, अलग तवाफ ज़ियारत, फिर उनका हज मुकम्मल होता है। ये थी मस्जिद नमरा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और दूसरी हमारी मैदान अरफात के अंदर ज़ियारत है जबल रहमत पहाड़। ये जबल रहमत पहाड़ वो बरकतों वाला पहाड़ है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से छोटी सी भूल हुई तो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाला। तो काफी सौ साल, कुछ रवायत के अंदर आता है 300 साल और कुछ रवायत के अंदर आता है 40 साल। एक दूसरे को ढूंढते रहे लेकिन एक दूसरे की आवाज सुनते देख ना सकते। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी जबल रहमत पर आए, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और अम्मा हव्वा के साथ मुलाकात फरमाई। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पढ़ा
तो आप वसल्लम ने इसी जबल रहमत के दामन में किस्वा नामी ऊँटनी के ऊपर बैठकर अपनी उम्मत के लिए 5 से 6 घंटे लगातार दुआ मांगी। और रवायत के अंदर आता है कि आप वसल्लम का जो कुर्ता मुबारक था वो आंसू से तार हो चुका था। अपनी उम्मत के लिए इतनी लंबी और ज्यादा दुआ मांगी। इंशाल्लाह अभी हमारी गाड़ी मैदान अरफात की तरफ रवाना है। मस्जिद नंबरा बसें कम जाती, इंशाल्लाह आपकी बात स्पेशल लेकर जाएंगे। और आइसबन जो आज हज पे आते हैं उनको मस्जिद नंबरा की जियारत नहीं होती, क्योंकि 35-40 लाख लोग होते हैं, 2 से 2.5 लाख लोग तो मस्जिद के अंदर, बाकी सारे खेमों के अंदर होते हैं। खेमों का क्याम लाजमी होता है, मस्जिद नंबरा पहुंचना लाजमी नहीं होता। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप मस्जिद नंबरा जाएंगे, क्योंकि आप उम्रे पे आए तो अल्लाह ने आपको सादत दी। इंशाल्लाह आपको मस्जिद नंबरा लेकर जाएंगे। और उसके बाद फिर जबल रहमत, तो फिर आगे इंशाल्लाह कुछ 3 तरीके हैं हज करने के। पैदल का तरीका है, बस का तरीका और ट्रेन का मंसूबा। 3 तरीकों से 3 मंसूबों से हज होती, वो आपको दिखाएंगे। मिना मुजदलिफा अरफात की एक चीज दिखाएंगे जो हज के दौरान आपने हज पेश तो करनी होती है। इंशाल्लाह ये कुछ ही देर के बाद हमारी गाड़ी मैदान अरफात के करीब पहुंच जाएगी। तो तमाम हाजियों से गुजारिश है कि ज़ियारतों तक हमारी गाड़ी हरम शरीफ की हदूद के अंदर है। तो सबसे बेहतरीन हाल है को तलबिया शरीफ या दरूद शरीफ का विर्द जारी रखें। यह सबसे बेहतरीन हाल है। यहाँ पर एक दफ़ा दरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से 1 लाख मरतबा का सवाब है। इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद 10-15 मिनट तक हमारी गाड़ी मैदान अरफात के करीब पहुंच जाएगी। तू खुदाया एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बनाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, एक लफ्ज़ अरफात स्टार्ट से यहाँ से अभी हमारी गाड़ी जब टर्न करेगी तो आपके सीधे हाथ की तरफ ये लोहे का जंगला आपको नजर आएगा। ये लोहे का जंगला जब हम क्रॉस करेंगे तो हम मैदान अरफात के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये आपके सीधे हाथ की तरफ। और जंगले के अंदर देखें, ये आपको लोहे के फ्रेम नजर आ रहे लगे हुए, ये खेमों के फ्रेम है। खेमे ऊपर से उठा दिए गए। इन छोटे प्लाट से एक प्लाट बना हुआ, इनके ऊपर खेमा लगता है। और खेमे के अंदर 2 से 250 लोग होते हैं और बड़े खेमे के अंदर 4 से 500 लोग होते हैं। ये मैदान अरफात, जब हम मैदान अरफात ये जंगला क्रॉस करेंगे तो हम मैदान अरफात के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जिस मैदान के अंदर आखिरत का मैदान, अशर का मैदान लगेगा। ये आपको फ्रेम लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये इसी तरह का खेमा होता है। ये आपको पीले बोर्ड नजर आ रहे हैं। जब ये पीले बोर्ड से हम क्रॉस करेंगे तो हम मैदान अरफात के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और ये आपके सीधे हाथ की तरफ सफेद टेंट नजर आ रहा है। ये स्टेशन है मैदान अरफात का, ट्रेन वाला स्टेशन। 3 तरीकों से 3 मनसूबों से हज होती है। ये स्टेशन है मैदान अरफात का, ट्रेन वाला स्टेशन। आगे आपको मिना मुजदलिफा के अंदर भी दिखाएंगे। और सीधे हाथ की तरफ देखें, ये मस्जिद नंबरा के आपको मीनार गुंबद नजर आ रहे हैं। ये सफेद टेंटों के साथ देखें, 6 मीनार 3 गुंबद। जिस मस्जिद के अंदर 9 ज़िलहज को हज का खुतबा होता है, ये भी मस्जिद साल के बाद सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती, फिर सारा साल ये बंद रहती है। और आगे ये स्टेशन के आगे देखिए पुल जा रही है, पटरी। ये है ट्रेन वाला मनसूबा। जो हाजी टिकट ट्रेन की होती है वो ट्रेन पे जाते हैं, जो बस पे होते हैं बस पे जाते हैं। पैदल वाले हाजी तो शौक से पैदल हज करते हैं और ज्यादातर हाजी पैदल ही हज करते हैं। ये आपको सामने जो नजर आ रही है पटरी पुल, ये ट्रेन वाली। ये आगे मैदान अरफात से मुजदलिफा की तरफ जा रही है, मुजदलिफा से फिर मिना की तरफ जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन वाला मनसूबा है। ये हज के दौरान चलती है। फिर ये हर चीज, ये हज के दौरान मिना मुजदलिफा अरफात बाकी ज़ियारतें ही हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद हम पीले बोर्ड्स क्रॉस करेंगे तो हम मैदान अरफात के अंदर दाखिल होंगे, जिस मैदान के अंदर आखिरत का मैदान, अशर का मैदान लगता है। और आयुष्मान 9 वाले दिन इस मैदान के अंदर इतना रश होता है कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि सारे हाजी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं खुतबा सुनने के लिए। खुतबा सुनने के बाद फिर मुजदलिफा की तरफ रवाना होते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो फिर मिना के अंदर फिर 6 दिन वहाँ गुजारते हैं, शुरू से लेकर। यहाँ से भी हमारी गाड़ी यहाँ से आपको
ये खोल दो। ये आइसबान मैदान अरफात के अंदर ये जितने भी पौधे आपको नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के एक जनरल गुजरे हैं, जनरल जियाउल हक। वो 1985 में इधर हाज के लिए आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने ये पाकिस्तान से पेड़ मंगवाए थे 10 लाख पेड़, और इनके नीचे जो मिट्टी डाली गई वो भी पाकिस्तान से ही मंगवाई गई है। ये हज के दौरान आइसबान ये हैं तो छोटे छोटे, लेकिन इनकी कदर का पता हज के दौरान चलता है। जब हाजी थोड़ा सा साया ढूंढते हैं तो फिर इनके नीचे क्याम करते हैं, वो बैठते हैं। और ये सामने आपको पीले बोर्ड दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, बदायतुल अरफात, अरफात स्टार्ट से। ये हजाज की सहूलत के लिए लगाए गए हैं। जो हाजी आज का खुतबा इन पीले बोर्ड के बाहर सुनता है उसका क्याम, उसका हज मुकम्मल नहीं होता। जो हाजी इन पीले बोर्ड से बाहर होगा उनका खुतबा मुकम्मल नहीं होता। अभी हम ये पीला बोर्ड क्रॉस कर चुके हैं, ये जंगला भी क्रॉस कर चुके हैं। अभी हमारी गाड़ी मैदान अरफात के अंदर अभी हमारी गाड़ी मैदान अरफात के अंदर पहुंच चुकी है, जिस मैदान के अंदर आखिरत का मैदान अशर का मैदान लगेगा। आप मस्जिद नबरा जबल रहमत जहाँ पर आप उतरेंगे आपके कदम मैदान अरफात के अंदर लगेंगे, जिस मैदान के अंदर आखिरत का मैदान अशर का मैदान लगेगा। और आयुष्मान ये मस्जिद सारा साल बंद ही रहती, साल के बाद एक दिन के लिए खुलती है। अगर जिन हाजियों को वुजू है वो बरामदों के अंदर 2 नफल अदा कर लेंगे, जिनका वुजू नहीं है नफल पढ़ना कोई लाजम नहीं है। वुजू नहीं है तो दुआ मांगकर गाड़ी की तरफ आ जाना है, क्योंकि बसें बहुत कम इधर आती हैं। ज्यादातर बसें आपको जबल रहमत पे नजर आएंगी, तो आपने ज़ियारत करनी, नीचे उतर कर जिनका वुजू होगा वो 2 नफल पढ़ लेंगे, जिनका नहीं होगा वो दुआ मांगकर वापस आ जाएंगे। सूरज उतर रहा है धरती पे हौले हौले, छाए फसूं फिजा पर जब रात जुल्फ खोले, सुबहान तेरी कुदरत सारा जहान बोले। मस्जिद नंबरा सामने आ गई, जिस मस्जिद के अंदर हज का खुतबा पढ़ा नौजुल हज को। और आइसबान इन हाजियों ने नफल पढ़ने, जिस तरफ मैं खड़ा हूँ इस तरफ खाना काबा शरीफ का रुख है, जिस तरफ मैं खड़ा हूँ इस तरफ खड़े होकर नफल पढ़ना है। नफल अदा करने के बाद वुजू नहीं होगा तो फिर दुआ मांगकर वापस आपने आ जाना है। ये सामने बरामदों में चले जाए, यहाँ पर आपको उतार देते हैं। ये बरामदों में चले जाएं, तमाम हाजी बेटे का ना होगा, कोई माँ बेटी की नहीं होगी, कोई किसी का, सबको अफड़ा तफड़ी का आलम होगा, अपने साबो किताब माल की होगी। अभी हमारी गाड़ी जबल रहमत की तरफ रवाना, और आइसबान मक्का मुकरमा की जितनी भी ज़ियारतें हैं सबसे ज्यादा रश इस ज़ियारत पे होता है। आदमियों हाजियों का भी रश आप देख लेना अपनी आंखों से, और बसों का भी रश देखना। लातदाद गाड़ियां खड़ी, लातदाद हाजी होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने हमारा साथ देना है। जहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे आपको लोकेशन बता देंगे, उस हिसाब से आपने आना है। वहाँ पर उसी तरतीब से आपको वक्त देंगे, टाइम देंगे। जबल रहमत जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अम्मा हव्वा के साथ मुलाकात हुई, और जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज पढ़ा तो आप वसल्लम ने इसी जबल रहमत के दामन में अपनी उम्मत के लिए 5 से 6 घंटे लगातार दुआ मांगी। और रवायत के अंदर आता है कि आप वसल्लम का जो कुर्ता मुबारक था वो 870 हो चुका था। अपनी उम्मत के लिए इतनी लंबी दुआ मांगी, और आपके लिए दोनों साइड पे खैमा, ये आपके बाएं आपकी तरफ खैमा एक लगा हुआ है, इसी तरह खैमा तैयार होता है। अल्लाह आपको भी इन खैमों का क़याम नसीब फरमाए। ये मैदान अरफात के खैमे, ये फ्रेम लगे हुए हैं, ये साल के बाद उतार देते हैं, हाज से पहले लगा देते हैं। मीना के खैमे सारा साल लगे रहते हैं। जबल रहमत पे आइसबान दुआ अल्लाह आपकी तमाम की कबूल करेगा। नेक तमन्ना अल्लाह इंशाल्लाह इधर आपकी दुआ को कबूल करेगा। लेकिन जहाँ पर आपको जबल रहमत नजर आ जाए वहाँ पर खड़े होकर आपने दुआ मांग लेनी है। दुआ जब अल्लाह ने कबूल करनी तो गाड़ी में भी कर लेगा, अगर नहीं करनी तो फिर ऊपर भी नहीं करना। अल्लाह ने आपको कबूल किया है, आपको चुना है, पसंद किया तो अपने घर बुलाया, नहीं तो लाखों आपके हमसाए, आपके गांव में, आपके रिश्तेदारों में लाखों पैसे वाले हैं। यहाँ कोई पैसों से नहीं आता, यहाँ मुकद्दर लेकर आते हैं, या जिसको अल्लाह चुनता है वही आता है। तो अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल किया तो आप इधर आए। लेकिन यहाँ पर हमारे नबी की दुआ कबूल हुई, हजरत आदम की, जो इंशाल्लाह आपकी दिली तमन्ना दुआएं, मुश्किलात इंशाल्लाह अल्लाह आपकी हल करेगा। लेकिन दूर से खड़े होकर आपने जब नजर आना है तो वहाँ पर दुआ मांग कर गाड़ी की तरफ आ जाना है। यहाँ पर हम
15-20 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں. یہ ڈرائیور بھائی بھی اچھے ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے زیارتیں کروا رہے ہیں, اور آپ کے گروپ لیڈر کی بھی بہت اچھی مہربانی, کیونکہ انہوں نے ہمیں بولا تھا پہلے کہ ہمارے حاجیوں کو زیارتیں اچھی طریقے سے کروانی ہیں. تو ہر جگہ کے آپ کو سکون سے کروا رہے زیارتیں. یہاں پر انشاءاللہ آپ کو آدھا گھنٹہ کا ٹائم دیں گے. یہ روڈ دیکھ لیں, چاروں روڈ فل ہیں, یہ چاروں طرف سے گاڑیوں سے فل ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں نزدیک آپ کی گاڑی لگائیں, اور آدھا گھنٹہ کا ٹائم, آدھے گھنٹے کے اندر تمام حاجی بس کے اندر اکٹھے ہوں گے. پھر انشاءاللہ آگے ہماری زیارتیں بھی باقی ہیں, اور ہم نے مسجد جرانہ بھی جانا ہے, جہاں سے رام باندھ کر آپ نے عمرہ کرنا ہے. جمال تیرا جلال تیرا کمال ہے بے مثال تیرا, ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر, اللہ اکبر اللہ اکبر. جمال تیرا جلال تیرا کمال ہے بے مثال تیرا, ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میرے مالک بزرگ و برتر نہیں ہے تیرے کوئی برابر, ہر ایک ذرے پہ تو ہی قادر, اللہ اکبر اللہ اکبر. جمال تیرا جلال تیرا کمال ہے بے مثال تیرا, ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تجھے بھلاؤں تو گم ہو جاؤں, اما بھلا پھر کہاں میں پاؤں تیری فضائیں تیرے سمندر, اللہ اکبر اللہ اکبر. جمال تیرا جلال تیرا کمال ہے بے مثال تیرا, ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر, اللہ اکبر اللہ اکبر. رہی نہ قائم کسی کی قوت, فقط رہی تیری شان و شوکت, نہ تخت کسرا نہ تاج کیسر, اللہ اکبر اللہ اکبر. جمال تیرا جلال تیرا کمال ہے بے مثال تیرا, ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ جس کو بھی تیری جستجو ہے, ہر ایک کے دل کے قریب تو ہے, رحیم مولا کریم رہبر, اللہ اکبر اللہ اکبر. جمال تیرا جلال تیرا کمال ہے بے مثال تیرا, ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تیری عطا میری زندگی ہے, تیری رضا میں میری خوشی ہے, تیری ضیاء ہو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. جمال تیرا جلال تیرا کمال ہے بے مثال تیرا, ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر, اللہ اکبر اللہ اکبر. ازل ابد ہے تیری کہانی, ہر ایک شے میں تیری نشانی, ہر ایک شے میں تو ہے منور, اللہ اکبر اللہ اکبر. جمال تیرا جلال تیرا کمال ہے بے مثال تیرا, ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ
6 मीनार 3 गुंबद। आइसबन रास्ते में कुछ रास्ते आएंगे पैदल वाले, कुछ बस वाले और कुछ ट्रेन वाले। 3 तरीकों से 3 मंसूबों से हज होती है, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर मुज़दलिफ़ा के अंदर जैसे हमने मस्जिद नबरा की ज़ियारत की है, मुज़दलिफ़ा के अंदर मस्जिद मशरुल हराम की ज़ियारत करेंगे, जिस मस्जिद के अंदर वो भी साल के बाद सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती, फिर सारा साल बंद रहती है। मस्जिद मशरुल हराम बा मुज़दलिफ़ा, कुरान पाक के दूसरे पारे के अंदर उस मस्जिद का जिक्र, उसकी ज़ियारत करेंगे। और मुज़दलिफ़ा के मैदान की ज़ियारत करेंगे, जिस मैदान के अंदर हज वाले हाजी एक रात खुले समान तले गुजारते हैं। और आइसबन आप सल्लम की बरकतों से साथ में ये देखे लोहे के पैप पे मुड़े हुए, जिनसे मसनूई बारिश की जाती है, हाजियों के ऊपर ठंडा पानी कराया जाता है। ये लाल रंग का रोड आपके सीधे हाथ की तरफ, ये 4 लाल रंग का रोड है पैदल वाले रास्ते, और 3 बस वाले और 1 ट्रेन वाला मनसूबा जो आपको दिखाया था। ये लेटो वाले पैप साथ में वो 5 पैप मुड़े हुए, जिनसे मसनूई बारिश की जाती है, हाजियों के ऊपर ठंडा पानी कराया जाता है। और साथ में सफेद पैप है, छोटे 6 लगे हुए, वो हाजियों के लिए पीने के लिए पानी होता है। जो हाजी पैदल हज करते हैं, कुछ बस के जरिए जाते हैं, कुछ ट्रेन के जरिए जिनकी टिकट होती है, और कुछ ये पैदल के जरिए जाते हैं जो पैदल हज करते हैं। ये 4 लाल रंग के रोड है पैदल वाले, एक ही सीधे हाथ की तरफ गुजर रहा है। ये हज के दौरान यहाँ पर कोई टैक्सी ट्रैफिक वगैरह नहीं चलती, सिर्फ पैदल वाले हाजी ही चलते हैं इसके ऊपर। और आगे 3 लाख अराक से होती हुई तैफ तक जाती है नहर जुबैदा। ये आपके सीधे हाथ की तरफ ये नहर जुबैदा आ गई है, बिल्कुल आपके पहाड़ के दामन में क्लोज। ये नहर जुबैदा आपके सीधे हाथ की तरफ गुजर रही है। जितनी भी आगे जा रही है, ये तैफ से होती हुई ये रात तक जाती नहर जुबैदा 1200 किलोमीटर का सफर तय करती है। और आइसमान आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ ये ट्रेन वाली पूरी पटरी आपको नजर आ रही है, जो मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ आती है, और मुज़दलिफ़ा से फिर मिना की तरफ। ये हाजी फिर ट्रेन के जरिए आते हैं, जिनकी ट्रेन वाली टिकट होती है वो ट्रेन के जरिए आते हैं। ये आगे मुज़दलिफ़ा का स्टेशन आएगा, कुछ ही देर के बाद वाइट टेंट लगे होंगे मुज़दलिफ़ा का स्टेशन। ये आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ रेत ट्राई के लिए चल रही है। राइसबन ये आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ स्टेशन आ गया सफेद टेंट का। ये है मुज़दलिफ़ा का स्टेशन, जहाँ पर हाजी उतरते हैं और मुज़दलिफ़ा के अंदर फिर क़याम करते हैं। ये आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ वो 4 लाल रंग के रोड जो पैदल वाले थे वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये मुज़दलिफ़ा का मैदान यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ये सारे 4 लाल रंग के रोड यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और आपके सीधे हाथ की तरफ ये मुज़दलिफ़ा का मैदान स्टार्ट हो गया है। इसी मैदान के अंदर देखिए आइसबन कोई किसी के लिए खैमा नहीं है, कमरा नहीं है, जहाँ पर किसी को जगह मिलती है वहाँ पर वो क़याम करते हैं मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर एक रात खुले समान तले। और इसी मुज़दलिफ़ा के मैदान से कंकरियाँ उठाते हैं जो शैतान को रमी करते हैं। और ये 2 मीनार वाली मस्जिद आ रही है, मस्जिद मशरुल हराम बा मुज़दलिफ़ा। कुरान पाक के दूसरे पारे के अंदर इसका जिक्र है। ये साल के बाद सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती है, फिर सारा साल ये बंद रहती है। मस्जिद मशरुल हराम बा मुज़दलिफ़ा, कुरान पाक के दूसरे पारे के अंदर इस मस्जिद का जिक्र है। ये आपके बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ, ये साल के बाद सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती है। मस्जिद मशरुल हराम बा मुज़दलिफ़ा, कुरान पाक के दूसरे पारे के अंदर इसका जिक्र है। ये मुज़दलिफ़ा की मस्जिद। और आगे ये मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर देखे ये छोटी छोटी बजरियाँ कंकरियाँ पड़ी हुई हैं, ये बजरी टाइप से ये पूरे मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर बिखरी हुई आपको नजर आएगी। इसी मुज़दलिफ़ा के मैदान से कंकरियाँ उठाते हैं 72 और 49 मारने का हुक्म है। ज्यादा इस वजह से उठाते हैं कि जो मारते वक्त गिर जाती है उसको वापस उठाते नहीं है। और कंकरी का वजन इतना हो जितनी खजूर की गुठली होती है, इससे ज्यादा वजनी कंकरी आप नहीं उठा सकते।
یہ آگے آپ دیکھیں کہ پورے مزدلفہ کے اندر بکھری ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. یہ آپ کے بائیں دونوں ہاتھ کی طرف دیکھیں، یہ کنکریاں پڑی ہوئی مزدلفہ کے اندر پورے میدان میں. یہ حج کی بچی ہوئی، حج کے دوران نئے بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں. یہ حج کی بچی ہوئی جو حجی حج سے یہاں پر کنکریاں اٹھاتے ہیں. اسی مزدلفہ کے میدان کے علاوہ آپ کہیں سے کنکریاں نہیں اٹھا سکتے، سوائے مزدلفہ کے میدان سے آپ کنکریاں کہیں اور سے نہیں اٹھا سکتے. اور یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ابھی تک مزدلفہ کا میدان ہی چل رہا ہے. جب ہم یہاں سے ٹرن کریں گے تو ہم مینا کی طرف روانہ ہوں گے، مینا کے خیمے، مینا کی بستی. سارا مزدلفہ کا میدان ہی چل رہا ہے، یہ بڑے پہاڑوں کے درمیان تک. اور جب ہم یہ پل کراس کریں گے اس سے پہلے یہ سارا مزدلفہ کا میدان ہے. پھر انشاءاللہ مینا کے اندر داخل ہو جائیں گے، مینا کی بستی، مینا کے خیمے. اور آپ کے بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ کی طرف وہ ٹرین والی پل آپ کو ایک دفعہ اور یہ دیکھ لیں. یہ آگے مینا کا اسٹیشن آئے گا، یہ ٹرین والی پل مینا کے اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے. وہاں پر اسٹیشن آئے گا مینا کا. یہ جو سفید ٹینٹ لگا ہوگا یہ مینا کا اسٹیشن ہے. اور آیوشمان مینا کے اندر ہماری 2-3 زیارتیں، پہلے آپ وہ زیارتیں اچھی طریقے سے کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو مینا کے بستی، مینا کے خیمے، اوپر سے ایک خیمہ نظر آئے گا. ہماری جو سب سے پہلی زیارت آ رہی ہے وہ ہے وادی میسر. جب ابرا اپنا لیکچر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے جا رہا تھا تو اسی جگہ پر حضرت عبد المطلب ملے اور ان سے کہا کہ میں آپ کے رب کا گھر گرانے جا رہا. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ جانو اور اللہ تعالیٰ جانے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کافر آپ کے گھر کو گرانے کے ارادے سے جا رہا ہے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابابیل چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں، ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب انہوں نے اوپر سے پھینکی تو آدھی زمین تھلے ملی اور میٹ ہو گئی، ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا. وہ آگے تھوڑی سی خالی جگہ آئے گی، میں آپ کو دکھاؤں گا وادی میسر. وہاں پر حج کے دوران پولیس والے رکنے نہیں دیتے، استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیتے اور دوڑنے کا حکم دیتے، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. یہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف خالی جگہ آئے گی، میں آپ کو دکھاؤں گا. تمام حاجی استغفر اللہ پڑھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، بابیل کے ہاتھوں سے ہاتھی مروائے تھے. تو یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مینا کی بستی، مینا کے خیمے. یہ پل کے اوپر آپ سے ایک ایک خیمہ نظر آئے گا. آپ کو پل سے اوپر آپ کو انشاءاللہ گاڑی آستہ کر کے دکھائیں گے، آپ کو مینا کا ایک ایک خیمہ نظر آئے گا. یہ کچھ ہی دیر کے بعد یہ اسٹیشن جس کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں یہ اسٹیشن ہے مینا کا، دوسرا اسٹیشن مینا کا. یہاں پر بھی ٹرین حاجیوں کو اتارتی ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑی سی خالی جگہ ہے پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. یہاں سے آگے کی طرف آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا. یہاں سے دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف یہ خالی جگہ، یہ جو جہاں پر بلیک پین پڑے یہ خالی جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، وادی میسر. اور آیوشمان جو ہماری اگلی زیارت ہے بڑی برکتوں والی زیارت ہے، مقام اسماعیل قربانی والا پہاڑ، بڑا برکتوں والا پہاڑ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں اولاد دی تو اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاکھوں دمبے اونٹ ذبح کیے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا کہ اس سے پیاری چیز کی قربانی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی پہاڑ کے اوپر قربانی کے لیے لے کر آئے. 3 مرتبہ چھری چلائی لیکن چھری نہیں چلی. تیش میں آ کر چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور چھری سے کہا کہ تم اتنی نرم اور نفیس گردن پر نہیں چل رہی ہو، اتنے سخت پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو چھری نے اللہ تعالیٰ سے زبان مانگی. جب چھری کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی تو چھری نے کہا کہ تم نے 3 مرتبہ چلنے کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے 17 مرتبہ منع فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا.
ये आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गुंबद आएगा, मीनारा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सफेद कलर का छोटा सा मीनारा सुराख होगा, वो मुकाम इस्माइल पहाड़, बड़ा रहमतों वाला पहाड़ है। इसी की बदौलत हम तमाम मुसलमान साल के बाद कुर्बानी करते हैं। ये आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पर मेरे हाथ का इशारा ना, ये आगे हम थोड़ी गाड़ी जाती है आपको नजर आएगा, वो देखें। फ्रंट वाले देखें, पीछे वाले जो हाजी वो आगे से देखें। ये आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ वो सफेद कलर का छोटा सा गुंबद है, मीनारा सुराख बना हुआ है। ये आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ ज़ियारत कर लें। मुकाम इस्माइल पहाड़, कुर्बानी वाला पहाड़, बड़ा बरकतों वाला पहाड़। इसी की बदौलत हम तमाम मुसलमान साल के बाद कुर्बानी करते हैं। ये आपके बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ ये आपके ये छोटा सा मीनारा गुंबद नजर आ रहा है, जिसके अंदर छोटा सा सुराख है मीनारा। ये मुकाम इस्माइल पहाड़, बड़ा बरकतों वाला पहाड़। इसी की बदौलत हम तमाम मुसलमान साल के बाद कुर्बानी करते हैं। राइसबान अभी हमारी गाड़ी आगे रवाना मीना की बस्ती, मीना के खेमे पुल से ऊपर आपको एक खेमा नजर आएगा। और आगे एक हमारी ज़ियारत आ रही है, जैसे मस्जिद नमरा की हमने ज़ियारत की है मैदान अरफात के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर मस्जिद मशरुल हराम की, और मीना की जो हमारी मस्जिद की ज़ियारत है मस्जिद खैब, जिस मस्जिद के अंदर 70 अंबिया ने नमाज अदा की और उन्हीं 70 अंबिया की कब्रें इसी मस्जिद खैब के अंदर हैं। और जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पढ़ा तो आप सल्लम का खैमा किसी मस्जिद खैब की दामन में था। उसकी ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत करने के बाद जमेला शैतान उनको देखते हुए फिर इंशाल्लाह हम मीना की बस्ती, मीना के खैमों की ज़ियारत करते हुए फिर हम मस्जिद जुराना की तरफ रवाना होंगे। मस्जिद जुराना से जिन हाजियों ने राम बांध कर उम्रा करना है वो कर सकते हैं। किसी के ऊपर दाम वगैरह या मकात नहीं है, वाजिब नहीं है। जिन्होंने करना है वो कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं करना किसी के ऊपर कोई दाम वगैरह नहीं है। ये आपके दोनों साइड पे मीना की बस्ती, मीना के खेमे चल रहे हैं। لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا مسجد خیف، 2 مینار آگے 2 پیچھے، اور اسی مسجد کی زیارت کرتے ہوئے مسجد سے آگے یہ جمیرہ شیطان ہے، جہاں پر یہ سفید ٹینٹ لگے ہوئے نا، یہ پہلی چھتری جو تاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے وائٹ کلر کی، یہ 3 فلور اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے چھتری کے نیچے چھوٹا شیطان، پھر درمیانہ شیطان، پھر سب سے بڑا شیطان۔ یہ 3 چھتریاں آگے لین میں، تینوں شیطان اسی جگہ پہ، یہ جو 3 فلور برانڈے اندھیرا سا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وائٹ کلر کی چھتری تاروں کے ساتھ بندھی ہوئی، یہ شیطان ہے۔ یہاں پر حاجی شیطانوں کو رمی کرتے ہیں، 3 دن کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ آپ کے دونوں سائڈ پہ مینا کی بستی، مینا کے خیمے، یہ آپ کے دونوں سائڈ پہ ہیں۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
جی اس بار یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مینا کی بستی مینا کے خیمے لبيك جن کے اندر حاجی قیام کرتے ہیں مینا کی بستی مینا کے خیمے لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك یہ مینا کی بستی مینا کے خیموں کی زیارت کر لیں اللہ تعالیٰ اسی مینا کے اندر تمام حاجیوں کو آج کی سعادت نصیب فرمائے إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك اور اس بار یہاں تک ہماری مینا کی زیارتیں مکمل ہو چکی ہیں اللهم لبيك ابھی لبيك مینا تک ہماری زیارتیں مکمل ہو چکی ہیں ہماری گاڑی مسجد جرانہ کی طرف روانہ ہے جہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین لڑی تو فتح حاصل ہوئی تو 1200 صحابہ کرام کے ساتھ راہ بند کر عمرہ کیا اور یہاں سے عمرہ کرنا بڑا عمرہ کراتا ہے اور ایک عمرے کرنے سے 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے جن حاجیوں نے عمرہ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کرنا پیچھے کے اوپر کوئی دام وغیرہ مکان واجب نہیں ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہماری گاڑی مسجد جرانہ کے قریب پہنچ جائے گی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے آپ 2-3 دعائیں آپ کو بتائیں ایک لسم سرما جو عرق گلاب اور آب زمزم سے تیار ہوتا ہے یہ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك جنت المالا قبرستان میں بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف لك والملك یہ ابھی آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف آگے یہ کالے بلیک کلر کے جنگلوں کے اندر دیکھیں یہ سفید کلر کے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے یہ بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ جنت المالا قبرستان لبيك اللهم لبيك جی آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک مینار والی مسجد مسجد جن جس مسجد کے اندر جنوں کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کیا اور اسی مسجد کے اندر اسلام کی دعوت حاصل کرتے تھے اور اسی مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ بھی حاصل کرتے تھے یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک مینار والی مسجد مسجد جن نیچے ماتد رات نماز ادا کرتے ہیں اوپر روشن کرتے ہیں لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك دیکھ لیں لبيك لا درخت والی مسجد مسجد شجر اور آیوشمان یہ تین چار جو ہماری ریاستیں ہیں یہ حرم سے نکلتے بالکل یہ سامنے حاجی نظر آتی ہیں اور یہاں تک ہماری مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات کی ریاستیں مکمل ہو چکی ہیں ابھی ہماری گاڑی ہوٹل کی طرف روانہ ہے انشاءاللہ 5-10 منٹ کے اندر ہماری گاڑی ہوٹل کے قریب پہنچ جائے گی تمام حاجی اپنا سامان اتحاد سے اٹھا لیں کیونکہ بعد میں گاڑی مدینہ جدہ کے لیے روانہ ہوتی ہے بعد میں مسئلہ ہوتا ہے اپنا سامان اتحاد سے اٹھا لیجیے گا جب ہوٹل میں پہنچے لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك